ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص لمبی نماز پڑھاتا ہے، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران نصیحت میں غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلاتے ہو، سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے، کیونکہ اس میں بیمار، کمزور اور ضرورت مند سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب العلم صفحہ نمبر 94۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ ریاستی حکومت کی فلاحی اسکیمات سے مستحق عوام کو مستفید کروانے کے لیے فیلڈ عہدیداران حکومت کے رہنمائیانہ خطوط کی پابندی کریں اور مستحقین کو فائدہ پہنچائے۔ ضلع کلکٹر ہنمنتو۔ رواں ماہ کی 21 تا 24 تاریخ ہونے والے گرام سبھا میں عوام اپنی مکمل تفصیلات و درخواستیں داخل کریں، حکومت کی جانب سے ملنے والی اسکیمات سے فائدہ اٹھائیں۔ MIM قائدین کی عوام سے اپیل۔ طلباء تعلیم کے میدان میں بہتر نتائج حاصل کریں اور من لگا کر پڑھائی کریں۔ ڈسٹرکٹ انٹر ایجوکیشن آفیسر روی کمار جونیئر کالج کا کیا اچانک دورہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے رودرور و مختلف گاؤں کا کیا دورہ اور حکم دیا کہ عہدیداران اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات کریں کہ گرام سبھا کا انعقاد بغیر کسی غلطی کے ہو اور جو زمینیں قابل کاشت نہیں ان کی واضح طور پر نشاندہی کرے اور کریپ بکنگ اور بھون ایپس کی مدد سے تصدیق کرے۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے عہدیداروں کے ذریعے تیار کردہ تفصیلات کا معائنہ کیا تاکہ وہ ان عوام کو فائدہ پہنچا سکیں جو ریتو بھروسہ، اندرما مکانات، فوڈ سیکیورٹی اور اندرما آتمیہ بھروسہ اسکیموں کے ذریعے مستفید ہو سکے جو حکومت کی جانب سے نافذ کی جا رہی۔ کلکٹر نے چندور، اکبر نگر اور رودرور گاؤں کا دورہ کیا، مقامی عہدیداروں سے ملاقات کی اور فوڈ سیکیورٹی کارڈز اور کسانوں کی یقین دہانی اسکیموں کے بارے میں فیلڈ آبزرویشن کے ذریعے جمع کی گئی تفصیلات کے بارے میں دریافت کیا اور مشورہ دیا کہ راشن کارڈ کے لیے موصول ہونے والی درخواستوں کی اچھی طرح جانچ پڑتال کریں اور یہ چیک کریں کہ آیا ان کے نام خاندان کے افراد کے آدھار نمبر کے ذریعے راشن کارڈ میں کہیں بھی ہے یا نہیں۔ اکبر نگر کے مضافاتی علاقوں کی زمینوں کے ساتھ ساتھ رودرور بس اسٹینڈ کے عقب میں سروے نمبر 897 تا 957 والی زمینوں کا بھی فیلڈ سطح پر معائنہ کیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ زمین کو بغیر کسی فصل کی غیر زرعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ کلکٹر نے اسے لے آؤٹ کر کے پلاٹوں میں تبدیل کیا اور حکام سے تفصیلات طلب کی، جو زمینیں قابل کاشت نہیں ان کی واضح طور پر نشاندہی کی جانی چاہیے اور بھون ایپس کی مدد سے تصدیق کی جانی چاہیے۔ عہدیداروں نے جمع شدہ فیلڈ سطح کی تفصیلات کے ساتھ رجسٹروں کی جانچ کی اور گرام سبھا کے انتظام کے بارے میں تجاویز دی۔ انہوں نے حکم دیا کہ تمام انتظامات کیے جائیں تاکہ گرام سبھا کا انعقاد بغیر کسی غلطی یا الجھن کے ہو۔ اس موقع پر کلکٹر کے ہمراہ
बोधन सब कलेक्टर विकास महातव, चंदूर एमपीडीओ नीलावती, तहसीलदार, दीगर अफसरान मौजूद थे। పబ్లిక్ మీటింగ్ ఉండదు సార్ हुकूमती स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए अवाम वार्ड सभा में दरख्वास्तें दाखिल करें। निज़ामाबाद मजलिस के कायदीन ने की अपील। सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से 21 ता 24 जनवरी के दौरान मुनाकिदा ग्राम सभा वार्ड सभा के जरिए फलाह स्कीमों पर अमलावारी के खुसूस में शहर की अवाम राशन कार्ड्स के लिए अपनी दरख्वास्तें दाखिल करें। मुकामी मजलिस ऑफिस वाक़े अहमदपुरा में मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन, साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद और अमर फारूक के हमरा सहाफती बयान में कहा कि हुकूमत की जानिब से नए राशन कार्ड की मंजूरी के लिए मुनाकिदा प्रोग्राम में शहर की अवाम बिलखुसूस अक़लियती इलाकों की अवाम वार्ड सभा में दरख्वास्तें दाखिल करें। उन्होंने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम कैंपों में ही वार्ड सभाओं का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि माजी में हुकूमत ने प्रजा पालना मुख्तलिफ स्कीमों के लिए अवाम से दरख्वास्तें हासिल की थी और हजारों दरख्वास्तें मुतल्लिका महकमे के ओहदेदारों के पास जमा कराएगी। अलावा BC सर्वे के मौके पर भी हुकूमत ने अवाम की मुकम्मल तफसीलात फॉर्म के जरिए हासिल की है। किसी भी फलाह स्कीम से अहल मुस्तहिक अवाम को मुस्तफीद कराने के लिए हुकूमत के पास मुकम्मल डाटा मौजूद है। उन्होंने कहा कि हुकूमती सतह पर मुनाकिदा ग्राम सभाओं में राशन कार्ड्स के लिए अवाम दरख्वास्तें दाखिल करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस खुसूस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स अवाम की रहनुमाई के लिए मौजूद रहेंगे। मज़ीद तफसीलात और रहनुमाई के लिए मुकामी मजलिस ऑफिस पर रुजू हो सकते हैं और कहा कि पहले मरहले में तकरीबन 200 तक अवाम की डिवीज़न सतह पर ओहदेदारों ने निशानदही की है। मज़ीद दरख्वास्तें भी दाखिल की जा सकती है। अवाम अपने आधार कार्ड मुस्तामुल फ़ोन नंबर के साथ कैंपों में दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। निज़ामाबाद की आवाम खुसूसन डिवीज़नों का जो MIM नुमाइंदगी करती है और तमामी मुसलमानों को ये इत्तला दी जाती है कि ये गवर्नमेंट के जो जो प्रोग्राम अब जो चल रहे हैं रनिंग में, उसमें गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग जियोस भेजते हुए फॉर्म्स कलेक्ट कर रही है। इससे पहले प्रजा पालना के वक्त जो फॉर्म्स कलेक्ट किए गए थे उसमें राशन कार्ड के लिए भी फॉर्म्स कलेक्ट किए गए थे। उसके बाद फिर से एक नए तरीके से राशन कार्ड के लिए BCE सर्वे कराया गया। फिर उसके बाद फिर एक लिस्ट जारी की गई जिसमें जिसके पास असल को राशन कार्ड में नाम नहीं है उनके नाम आए, जो डिवीज़न सतह पे 100 से 200 के दरमियान हर डिवीज़न में वो लिस्ट लेके सर्वेयर्स अभी सर्वे कर रहे हैं। और आप अवाम नास से मेरी अपील है कि ये जो लोग सर्वे कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। और कोई अगर कुछ भी ऐसा कुछ मुश्किलात या आप किसी चीज़ की मदद हो तो आप अपने एरिया कारपोरेटर MIM के कारपोरेटर्स और तमामी लोग आपके बीच में रहेंगे। जो भी है आप उनसे कंसल्ट करें और कारपोरेटर्स की टीम आप उनकी मदद के लिए हर वक्त अवेलेबल है। तो आप तमाम से गुजारिश है कि ये जो लोग आपके घर पे आ रहे हैं उनको अपना राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड और फ़ोन नंबर इंफॉर्मेशन पूरा कंप्लीट दीजिए। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, असल को नहीं है, उनकी इंक्वायरी चल रही है कि 21 से 24 तारीख तक वार्ड सभा ग्राम सभा बोल के एक प्रोग्राम लगाई है, जो हर डिवीज़न में जहाँ पर प्रजा पालना प्रोग्राम हुआ वहीं पर फिर से एक कैंप लगाया जाएगा, जिसमें ये जो इंक्वायरीज नहीं हुए वो लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स लाके सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिसको अभी राशन कार्ड के लिए फिर से एप्लीकेशन देना पड़े, जिसके भी नाम नहीं आए, फिर से एक बार अपने नाम दीजिए। अगर आप तो MIM ऑफिस जो अहमदपुरा कॉलोनी में है, आपको डिटेल वो कौन सी डेट में
कौन से डिवीजन में आने वाले हैं, वो कैंप लगने वाला है, आपको बताया जाएगा। वैमुला प्रशांत रेड्डी, जिन्हें अवामी नुमाइंदे के तौर पर मुंतखब किया गया, उन्हें अवाम की फलाह व बहबूद के बारे में सोचने का भी वक्त नहीं। यही वजह है कि 3 माह कबल मंजूर शुदा चेक्स भी बालकोंडा में तकसीम नहीं किए गए। कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात में अवाम से किए वादों को पूरा करेंगी। डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीसीसी सदर और स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि बालकुंडा एमएलए वैमुला प्रशांत रेड्डी, जिन्हें अवामी नुमाइंदे के तौर पर मुंतखब किया गया, हुकूमत पर सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत न करने का इल्जाम लगाते हैं देखना सितम ज़रफ़ी है। बीआरएस के आखिरी 2 सालों के दौर हुकूमत में प्रशांत रेड्डी कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम का बाइकआउट कर रहे थे, क्योंकि अवाम ने वेलपुर, भीमगल, मुपकाल और कमरपल्ली के इलाकों में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम प्रोग्राम के दौरान उनसे सवालात किए थे, क्योंकि लोगों ने वेलपुर, भीमगल, मुपकाल और कमरपल्ली के इलाकों में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम के प्रोग्राम के दौरान उनसे सवालात किए थे। उन्होंने कहा कि बीआरएस के आखिरी 2 सालों के दौरान चेकों को ज़ेर-इल्तिवा रखा गया। मोहन रेड्डी ने सवाल किया कि अगर प्रशांत रेड्डी ये कहते हुए चेक्स की तकसीम का बाइकआउट करते कि सोना नहीं दिया जा रहा, तो प्रशांत रेड्डी की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि गुज़िश्ता साल के दौरान चेक्स क्यों तकसीम नहीं किए गए। जब देहात की खवातीन ने प्रशांत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया और उनसे पूछा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक उनके साबिका दौर इख्तियार के 2 सालों में क्यों तकसीम नहीं किए गए, तो प्रशांत रेड्डी को मालूम नहीं था कि क्या जवाब दें और इल्जाम लगाकर एक तरफ हट गए। मानाला मोहन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी प्रशांत रेड्डी के रवैये की सख्त मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि प्रशांत रेड्डी के पास अवाम की फलाह व बहबूद के बारे में सोचने का भी वक्त नहीं। यही वजह है कि 3 माह कबल मंजूर शुदा चेक्स भी बालकुंडा में तकसीम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशांत रेड्डी चेक तकसीम प्रोग्राम के लिए आगे आएंगे तो वो एक तरफ हट जाएंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उनसे सवाल करेंगे और गलतियां सामने आएंगी। मानाला मोहन रेड्डी ने नतीजा अखज़ किया कि ओहदेदारान कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स की मियाद खत्म होने से कबल मुस्तकिल में चेक्स तकसीम करेंगे जो अवाम के लिए मंजूर किए गए हैं। आया प्रशांत रेड्डी जो अवामी नुमाइंदे हैं आते हैं या नहीं। माजी में बीआरएस हुकूमत की लापरवाही के अलावा एमएलए प्रशांत रेड्डी की लापरवाही की वजह से इस्तिफादा कुनिंगान को चेक्स की वसूली में 2 साल की ताख़ीर हुई। इसलिए मोहन रेड्डी ने प्रशांत रेड्डी के कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक से फायदा उठाने वालों से फौरी तौर पर माफी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने वजाहत की कि अवाम बीआरएस और बीजेपी पार्टी की झूठी बातों पर यकीन ना करें और कांग्रेस हुकूमत इन चेकों और बिलों की अदायगी करेगी जिन्हें माजी में नजरअंदाज किया था और इंतखाबात में अवाम से किए गए तमाम वादों को एक एक करके पूरा किया जाएगा। इलेक्शन में वादे के मुताबिक खवातीन के लिए मुफ्त बस की सहूलत, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, आरोग्यश्री की हद 10 लाख तक बढ़ाना, किसानों के लिए किसानों के खर्च माफी। इसी तरह इस माह की 26 तारीख से नए राशन कार्ड किसानों की यकीन दहानी 12,000 रुपये बेजमीन गरीबों को दिया जाएगा। रियासती चीफ मिनिस्टर के मुताबिक प्रशांत रेड्डी हुकूमत की फलाही तरक्याती स्कीमों में हिस्सा नहीं ले रहे। उन्होंने प्रशांत रेड्डी को फौरी तौर पर कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के इस्तिफादा कुनिंगान से माफी मांगने का मुतालिबा किया। మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। ఖచ్చితంగా మేము ఇచ్చిన హామీలు ఒక్కొక్కటి నెరవేరుస్తున్నాం। త్వరలోనే వీటన్నిటికి కూడా పరిష్కారం దొరుకుతుంది। కేవలం మీరు 2 సంవత్సరాలుగా ఏవైతే పెండింగ్ లో పెట్టినటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులకు సంబంధించినటువంటి మహిళలు నాకు తెలిసి ఒక్కొక్కరు 2 పిల్లలు తీసుకొని వచ్చినటువంటి పరిస్థితి చెక్కులు తీసుకోవడానికి। అంటే మీ నిర్లక్ష్యం వల్ల వాళ్ళు మీరు ఇచ్చే ₹1,00,000 చెక్కు అప్పుడు ఇచ్చుంటే వాళ్ళకు లక్షకు ₹1,50,000 సంబంధించినటువంటి ఇంట్రెస్ట్ తగ్గుతుండే। కానీ మీరు వాళ్ళకు నష్టం చేసి ఇవాళ నేరుగా మళ్ళా కాంగ్రెస్ పార్టీని విమర్శించే ఒక కార్యక్రమం చేస్తున్న తీరును చాలా విడ్డూరంగా ఉంది। మొగుడిని గట్టి మోదు ఎవరు చెప్పుకున్నట్టు ఒక సామెత ఉన్నది। నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, మీరు ప్రజల్లో తిరగాలని సిద్ధంగా ఉంటే రండి, మా ఏవైతే మేము చేస్తామో దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తానికి అవకాశం ఉండగా మీరు ఎందుకు రానంటారో మీరు మాకు ప్రజలందరూ గుర్తించాలా। కేవలం వాళ్ళ తప్పిదాలు బహిర్గతమవుతున్నాయి। ప్రజలు మొన్న వేల్పూర్లో ముక్కాల్లో ఎక్కడికక్కడ నిలదీశారు కాబట్టి ప్రశాంత్ రెడ్డి పక్క తప్పుకున్నాడనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఖచ్చితంగా మీకు
ప్రజల సంక్షేమం గురించి సమయం లేకపోవడం ద్వారానే ఈరోజు గత 3 నెలల క్రితం తయారైనటువంటి చెక్కుల్ని పంచడానికి కూడా మీకు సమయం సరిపోలేదు. ఎట్లాగో అది ఈ చెక్కులు పంపిణీ కార్యక్రమంలో మీరు ముందుకొస్తే మళ్ళీ ప్రజలు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తారనే ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో పక్క తప్పుకుంటున్నారు. ఈ రోజే మేము ఎంఆర్ఓలందరికీ పొద్దున్నే మేము సీరియస్గా చెప్పడం జరిగింది. आम कब्रिस्तान बालकुंडा में मलबा डालकर पूजा पाठ के जरिए शरपसंदी मुकामी मुसलमानों का एहतजाज, मजलिसी कायदीन की एसीपी से नुमाइंदगी, पुलिस ने मलबे को हटा दिया। निजामाबाद जिले के आम कब्रिस्तान बालकुंडा में संगम इमारत को मुनहदिम करने के बाद मलबा और मूर्तियों की सुतूनों को फेंक दिया गया था। आज बास शरपसंद अनासिर की जानिब से मूर्तियों को नस्ब करते हुए पूजा पाठ करने के वाक़ये पर मुकामी मुसलमानों ने एतराज करते हुए एहतजाज किया और बालकुंडा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सर्कल इंस्पेक्टर बालकुंडा श्रीधर रेड्डी, सब इंस्पेक्टर नरेश ने मुकामी वाक़या पहुंचकर मुआयना किया। इस वाक़ये की इत्तला पर सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन, सदर टाउन मजलिस निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, इब्तिदाई सदर आरमूर मोहम्मद जहीर अली, इब्तिदाई सदर बालकुंडा मोहम्मद अतीफ, मोतमद बालकुंडा शेख वाजिद, शरीके मोतमद सैयद रेहान, मोतमद आरमूर मोहम्मद खालिद के अलावा अरशद पाशा, अमर फारूक, समीर बलाला ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आरमूर वेंकटेश्वर रेड्डी से तहरीरी नुमाइंदगी की और बताया कि बास शरपसंद अनासिर की जानिब से 6 माह कबल एक तबकाती संगम की इमारत को मुनहदिम करने के बाद मूर्तियों वाली सुतूनों पर मुश्तमिल मलबे को आम कब्रिस्तान बालकुंडा में पानी की टैंकी के पास डाल दिया गया और आज बास इशरार की जानिब से कब्रिस्तान अराजी में इन मूर्तियों की पूजा पाठ शुरू कर दी गई। उन्होंने इस मलबे को फौरी हटाने और आम कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के जरिए इशरार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। एसीपी आरमूर ने वफद को तयक़ुन दिया कि इस खुसूस में इक़दामात किए जाएंगे। बादजा इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा की हिदायत पर पुलिस ओहदेदारों ने वाक़ई की तहक़ीक़ात के जरिए कब्रिस्तान से मलबे को हटा दिया। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने किया हरिचरण जूनियर कॉलेज का अचानक मुआयना और मशवरा दिया कि कॉलेज में तलबा को मंशियात और नशावर अशिया से आगाह किया जाए। जिला इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने निजामाबाद जिला हेडक्वार्टर में वाक़े हरिचरण जूनियर कॉलेज का अचानक मुआयना किया। कॉलेज में तलबा की तालीम के बारे में तफसीलात तलब की। कॉलेज में तलबा की तालीम के बारे में दरियाफ्त किया। फैकल्टी की तालीमी तदरीस का ज़ाती तौर पर क्लासरूम्स में मुआयना किया और तलबा से बात की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर ने प्रिंसिपल, असातिज़ा और स्टाफ के हमरा मीटिंग मुनाक़िद की। इस मौके पर खिताब करते हुए रवि कुमार ने बेहतरीन नताइज हासिल करने का हुक्म दिया। तलबा को इंटर इम्तिहानात के लिए तैयार करने के अलावा सालाना इम्तिहानात के लिए खुसूसी क्लासेस का भी हुक्म दिया। कॉलेज में साइंस लेबोरेटरीज के इंतजामात का जायजा लिया। जिन तलबा ने इम्तिहानी फीस अदा कर दी है वो दूसरी जुबान, मीडियम, दस्तखत और तस्वीर की तस्दीक के एक और मौके से फायदा उठाए। इस मीटिंग में प्रिंसिपल, फैकल्टी और स्टाफ भी मौजूद थे। निजामाबाद में से-रोज़ा तबलीगी इज्तिमा का अज़ीमुश्शान आगाज़, हज़ारों फर्जंदाने तौहीद की शिरकत। मंगल को दुआ का एहतमाम, तमाम मुसलमानों से जौक दर जौक शिरकत की अपील। निजामाबाद के नवाह में तबलीगी जमात के से-रोज़ा इज्तिमा का इतवार के दिन बाद नमाज़े ज़ोहर से आगाज़ अमल में आ चुका है। 3 रोज़ा इज्तिमा में कई मुकामात से मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए अपनी दीनी हमियत का सबूत दिया है। बिलखुसूस नौजवानों की बड़ी तादाद इज्तिमा गाह में दिखाई दे रही। ताजरीन अपने कारोबार को बंद रखते हुए दीनी इज्तिमा में शरीक हो रहे हैं। 3 रोज़ा इज्तिमा का 21 जनवरी बरोज मंगल इज्तिमा की आखिरी निशिस्त बयान होगा और बवक्त 12 बजे दुआ का एहतमाम अमल में आएगा। दुआ में मुसलमान कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर सारे आलम के मुसलमानों के जान व माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत के लिए दुआ करें। शहर के गुंजान अक़लियती इलाका शांति नगर में सरक़े की वारदात, 6 तोला जेवरात और 70,000 का सारिकों ने किया सरक़ा। मुकामी सारिक मुलविस होने का शुबा, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। शहर के गुंजान अक़लियती इलाका शांति नगर में इतवार के दिन सरक़े की वारदात मंजरे आम पर है।
शांति नगर के साकिन शेख जुनेद ने करीबी रिश्तेदार के मकान में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत के लिए अपने मकान को मुखफ़िल करके रवाना हुए। नामालूम सारिकों ने दिन दहाड़े खुफल शिकनी करते हुए 6 तोला तलाई जेवरात और 70,000 रुपये नकद रकम उड़ा ली। शेख जुनेद को इनके मकान में दिन दहाड़े सर्क की वारदात की इत्तला मिलने पर उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। 5th टाउन एसआई गंगाधर ने मुकामी वारदात पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए केस दर्ज किया। शुबा किया जा रहा कि सर्क की वारदात में मुकामी सारिक मुलविस हो सकते हैं। पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए उनसे पूछताछ के जरिए मसरूखा जेवरात और नकद रकम बरामद करें ताकि मुस्तकबिल में इन इलाकों में सर्क की वारदातों पर रोक लगाई जा सके। आरमूर सईदाबाद उर्दू घर मुस्लिम शादी खाना में एसएससी तलबा में सालारे मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर की तकसीम। तलबा तालीम में खुसूसी तवज्जो देते हुए अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल करें। मेहमान खुसूसी जाफर हुसैन मेराज रुकन असम्बली याकूतपुरा हैदराबाद ने की शिरकत और खिताब किया। आरमूर सईदाबाद उर्दू घर मुस्लिम शादी खाना में एसएससी तलबा में सालारे मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर की तकसीम अमल में आई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से जाफर हुसैन मेराज रुकन असम्बली याकूतपुरा हैदराबाद ने शिरकत की। इस मौके पर एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने खिताब करते हुए कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर आरमूर टाउन के जिला परिषद हाई स्कूल के तलबा में 94 ऑल इन वन मॉडल पेपर की तकसीम अमल में आई है। एसएससी में जेर तालीम उर्दू मीडियम तलबा के लिए फख्र मिल्लत और सालारे मिल्लत ने तालीमी मैदान में तरक्की के लिए इमदाद फराहम करने की शुरुआत की थी। इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इसको उर्दू मीडियम तलबा के लिए असला तक वसअत दे रहे। मजलिस एक वाहिद जमात है जो मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक के लिए आवाज़ उठाती है। आरमूर सदर मजलिस मोहम्मद जहीर अली ने मुखातिब करते हुए कहा कि फख्र मिल्लत वो सालारे मिल्लत का ख्वाब था कि उर्दू मीडियम तलबा व तालिबात भी कॉर्पोरेट स्कूल्स के तर्ज पर तालीम हासिल करें और उनके मसावी तालीमी मैदान में आगे बढ़ते हुए कौम का नाम रोशन करें। मजलिस का मकसद ये है कि नौजवान नस्ल सरकारी इदारों में आला उर्दू पर फायज हो। उर्दू की तरक्की के लिए सिर्फ मजलिस ऐवान असम्बली में आवाज उठाती है। तेलंगाना रियासत में उर्दू को सरकारी दूसरी जबान का दर्जा हासिल है। उर्दू से दुश्मनी रखने वाले चंद कायदीन उर्दू को मिटाने की कोशिश कर रहे, मगर मजलिस हमेशा मुसलमानों की रहनुमाई करती आई है और करती रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। हमेशा तालीमी मैदान में तलबा की रहनुमाई में मजलिस आगे रहती है। तलबा से ख्वाहिश की कि तलबा तालीमी मैदान में खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल करें। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मजलिस जिले सदर फैयाज, सदर टाउन मजलिस निजामाबाद शकील अहमद फाजिल, मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, आरमूर मजलिस मोहतमद अब्दुल खालिक, जॉइंट सेक्रेटरी उबैदुल्ला, निजामुद्दीन, मोहम्मद इलियास, समीर बलाला के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक ऐसे मुकाम पर लाके ठहराया है जो आपकी जिंदगी का बहुत बेहतरीन मोड़ होता है। आप 10th का यानी एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि हर माँ और बाप यही चाहती है कि अपनी औलाद पढ़ लिख कर काबिल बने। उसके लिए वो लोग बड़ी मेहनत और मजदूरी करते हुए आप लोग के पीछे मेहनत करते हैं और आपको तालीम दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, जिसके लिए आज आप लोग खुद आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की खास क़यादत के अंदर हमेशा से यही सोचते रही है कि अपनी कौम किस तरीके से एजुकेशन में तरक्की करे और आगे बढ़े। और साथ ही साथ उर्दू को हम इसीलिए तरजीह देते हैं कि उर्दू आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान से खत्म होते जा रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने खास तौर से पिछली हुकूमत के टाइम पे असेंबली में ठहर कर कहा कि उर्दू के साथ नाइंसाफी हो रही है, उर्दू को दूसरा दर्जा देना चाहिए। तो अल्लाह का करम रहा कि उर्दू
तेलंगाना के अंदर सेकेंड लैंग्वेज के तौर के ऊपर यहाँ पर उर्दू को दूसरी मातृ जबान का दर्जा दिया गया है। ये अल्लाह का करम है, ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी है। तो उर्दू को खत्म करने की साजिशें करते हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उर्दू को बचाना चाहती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। उर्दू कैसे बचेगी? अगर आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे, अगर सरकारी इदारों में आप रहेंगे, अगर स्कूलों में मदारिस में आप रहेंगे, तो हम उर्दू को बचा सकते हैं और हमारे कौम और मिल्लत को आगे लेकर जा सकते हैं। तो मजलिस का यही मकसद है। यही मकसद के तहत सालार मिल्लत अलैहिर्रहमान ने ये प्रोग्राम शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवा शुरू होता हुआ आज अल्लाह के अंदर आ चुका है। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब का। उन्होंने एक तवील सफर तय करते हुए, क्योंकि यहाँ से आदिलाबाद से निर्मल, उसके बाद भैंसा जाना है, तो वो जो अपनी मसरूफियत के बावजूद इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए मैं आखिरी बार तलबा और तालिबात से एक ही गुजारिश करता हूँ कि ये किताब को लेके जाकर ताबदारों में मत सजाइए। आप ये किताब को लेके जाकर पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला अच्छे इम्तियाजी निशानात से आप कामयाब हुए, आगे की तालीम को हासिल कीजिए। जिले में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा। आवारा कुत्ते अवाम पर कर रहे अंधाधुंध हमला, जिससे अवाम में खौफ। म्यूनसिपल हुक्काम कुत्तों की रोकथाम के लिए इक़दाम करें और म्यूनसिपल कमिश्नर खुसूसी तवज्जो दे। अवाम ने की अपील। निजामाबाद जिला मरकज में कुत्तों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा और अवाम तनकीद कर रहे कि महकमा बल्दिया उनकी रोकथाम के इक़दाम करने में नाकाम है। जैसे जैसे कुत्तों की तादाद में इजाफा हो रहा, कुत्ते अवाम पर अंधाधुंध हमला कर रहे। जिले में गुज़िश्ता 3 माह से कुत्तों के मनसूबाबंदी के ऑपरेशन बंद है। शहर में कुत्तों के मुसलसल काटने की वजह से मुतासिर इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में रोजाना 10 से 20 कुत्तों के काटने के वाकयात दर्ज होते हैं। कार्रवाइयों का अमल हैदराबाद में कायम एक एजेंसी को सौंप दिया गया। 3 माह से भी कम अरसा कबल 208 कुत्तों का ऑपरेशन किया गया था। एजेंसी को 2,50,000 बिल पहले ही अदा किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से जिले में 3 माह से ऑपरेशन ठप है। बोधन और आरमूर में पकड़े गए कुत्तों का निजामाबाद एनिमल बर्ड कंट्रोल सेंटर में भी ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन उनसे मुतल्लिक बिल बोधन और आरमूर म्यूनसिपलिटी हुक्काम अदा करें। हुक्काम कुत्तों की रोकथाम के लिए इक़दाम करें और म्यूनसिपल कमिश्नर खुसूसी तवज्जो दें। अवाम ने अपील की। बीसी खवातीन सिर्फ खाने पकाने तक ही महदूद ना रहें, बल्कि सियासत में भी महारत हासिल करें। नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन जिला सदर के श्याम प्रसाद का बयान। बिचपली मंडल के धर्माराम गांव में बीसी खवातीन डिवीजन सदर पी गीता की सदारत में मुनाकिदा बीसी खवातीन की बेदारी कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के श्याम प्रसाद ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीसी खवातीन खुद को खाना पकाने तक ही महदूद ना रखें, बल्कि सियासत में भी सबकत हासिल करें। उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि मुनासिब हौसला अफजाई ना होने की वजह से खवातीन निचली सतह पर रह रही। उन्होंने वजाहत की कि यही वजह है कि बीसी वेलफेयर एसोसिएशन खवातीन की तरक्की में सबसे आगे खड़ी है। बीसी नेशनल वेलफेयर एसोसिएशन ने देही सतह पर खवातीन की हौसला अफजाई के लिए बहुत से प्रोग्राम बनाए। राज्यसभा के मेंबरान बीसी के कृष्णैया ने कहा कि वो बीसी की तरक्की के लिए पिछले 50 सालों से मुसलसिल जद्दोजहद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में निजामाबाद डिवीजन बीसी खवातीन सदर पी गीता ने कहा कि तमाम बीसी को इकट्ठा होना चाहिए और अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। इक़्तिसादी और सियासी तौर पर तरक्की करने की तजवीज़ दी। इस प्रोग्राम में रियासती सेक्रेटरी बराए खवातीन के अरुणा ज्योति, मुश्तरिका असला सदर, निजामाबाद सिटी सदर दिगर भी मौजूद थे। జిల్లాలో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। దానిలో భాగంగా ఈరోజు ధర్మారం గ్రామ కమిటీ ఎన్నికతో పాటు వారి స్థితిగతులపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది। బీసీలు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆశించి కాకుండా శాసించి పదవులు ఏర్పాటు చేయాలన్న సంకల్పంతో గ్రామీణ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి మహిళని ఖచ్చితంగా వంటింటికి పరిమితం కాకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ముందుకు తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి రాజకీయ భవిష్యత్తుతో పాటు ఆర్థిక భవిష్యత్తును కల్పించాలని బీసీ సంక్షేమ సంఘం పనిచేస్తా ఉంది। माला महानाडु कौमी सदर पी राम मूर्ति के खिलाफ MRPS के बानी सदर M कृष्णा मादिगा और मादिगा जात के बारे में नामुनासिब तबसरे करने पर मुकदमा दर्ज किया जाए। कोटगीर मंडल MRPS कायदीन ने किया मुतालबा। कोटगीर SI से की शिकायत।
कोडगिर मंडल MRPS सदर के पोचराम ने मुतालबा किया कि माला महानाडू के कौमी सदर पीर राम मूर्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जिन्होंने MRPS के बानी सदर M कृष्णा मादिका पर नामुनासिब तबसरा किया, जो SC की दर्जेबंदी के लिए लड़ रहे थे। इस हद तक उनकी क़यादत में कोडगिर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएगी। इस मौके पर बात करते हुए पोचराम ने कहा कि पीर राम मूर्ति के तबसरे मुआशरे के अमन सलामती को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मादिका का मजाक उड़ाने वाले उनके तबसरे जायज नहीं। उन्होंने कहा कि दर्जेबंदी की हिमायत करने वालों को मुल्क से निकालने की राम मूर्ति के ऐलानात से समाज में गहरी तशवीश पाई जा रही। उन्होंने पुलिस को राम मूर्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में MRPS लीडर के श्रीनिवास, साइलू, संजय, दिनेश कुमार दीगर भी मौजूद थे। ఆయన ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో మందకృష్ణ మాదిగను ఈ భూమి మీద లేకుండా చేయండి, అతన్ని చంపి పడేయండి అని ఆదేశాలు జారీ చేయడం ఇది కరెక్ట్ రాజ్యాంగపరంగా మాటలు కావు. ఇది శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించే విధంగా ఉన్నదని, కాబట్టి ఆ ఎస్సీ వర్గీకరణ ఏదైతే ఉన్నదో అది రాజ్యాంగపరంగా జరుగుతూ ఉంది. దాన్ని వీళ్ళు జీర్ణించుకోలేక ఎస్సీ వర్గీకరణకు ఎవరైతే ఇతర బీసీ నాయకులు, ప్రొఫెసర్లు, మేధావులు అందరూ సంఘీభావం తెలుపుతూ ఉంటే అవి చూసి తట్టుకోలేక వారిని కూడా రాష్ట్రం నుంచి బహిష్కరించాలని వారు చెప్పడం బాధాకరమైన విషయం. ఏది ఏమైనా ప్రజాస్వామ్యంలో చట్టబద్ధత ఉన్నది, దానికి రాజ్యాంగం ఉంది. రాజ్యాంగ ఆధారంగానే ఇది సుప్రీంకోర్టు. इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुस्तैक अवाम को मुस्तफीद करवाने के लिए फील्ड ओहदेदारान हुकूमत के रहनुमायाना खतूत की पाबंदी करे और मुस्तैकिन को फायदा पहुंचाए। जिला कलेक्टर हनुमंतु। रवा माह की 21 से 24 तारीख होने वाले ग्राम सभा में अवाम अपनी मुकम्मल तफसीलात व दरख्वास्तें दाखिल करें। हुकूमत की जानिब से मिलने वाली स्कीमात से फायदा उठाए। MIM कायदीन की अवाम से अपील। तलबा तालीम के मैदान में बेहतर नताइज हासिल करें और मन लगाकर पढ़ाई करें। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार जूनियर कॉलेज का किया अचानक दौरा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा, नस्द, विश्व शांति कॉलेज, 5 से 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।